Wadatunu Padurati Wadatunu Padusati Wadati Wujunu Padurati Wadatunu Magwa. Assalamu alaikum. Welcome children in today's tele class. Today I'll be delivering a lecture for class 10th biology and the chapter's name is heredity and evolution. So first of all we should be knowing that what is the heredity. When we talk about the heredity, it is the transmission of characters from parents to offsprings, or we can also define it as acquiring the traits or achieving the certain characters by the offsprings from the parents. Either way we can say क्या जो traits होते हैं, जो characters होते हैं, जब वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स उनके बच्चों में, तो उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं. तो जो ये चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसकी जो स्टडी है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इज एक्चुअली नोन एज जेनेटिक्स. सो टुडेज टॉपिक of ours will focus mainly on the genetics and basic of the genetics. So we understood what the heredity is. Simply I can write that it is transmission of characters from parents to offsprings. Now, then what is genetics? It is the study of heredity and evolution. Now, who coined this word genetics? Who is the who is the person who is responsible to introduce genetics to us? So it's none other than Gregor John Mendel, who is also known as father of genetics. It is Gregor John Mendel. This Gregor John Mendel, he was a mathematician basically, and he was born in July 22, 1822. Okay, or either way we can write it as 22nd July 1822. 22nd July 1822. Now he expired or he left this world in 1884. This mathematician involved himself for 6 years continuously with studying a species or a plant that is Pisum stivum that we commonly call as pea. Pea, garden pea, that's also known as botanically as Pisum sativum. तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो पाइसम सेटाइवम की स्टडीज जो है पूरे 6 इयर्स तक की, लेकिन 6 इयर्स की स्टडीज के बाद he concluded many important things, but all his work was unrecognized. And later, after his death, as I have mentioned here that he died in the year 1884, तो 1884 के 16 years के बाद, उसके मरने के 16 years के बाद, after his death and after 16 years of his death, his work was
accepted or we can say recognized. But till he was alive, no one accepted his work, neither his work was acknowledged. लेकिन जब उसकी डेथ हुई 16 years के बाद, जो 3 साइंटिस्ट्स थे, एक तो कोरन्स थे, चेरमैक and Hugo de Vries, these 3 scientists worked together and they re-acknowledged, they just re-understood the work and the publications and the work that was given by the concepts that was given by the Mendel. तो उन तीनों ने उसके वर्क को, उसके मरने के 16 years के बाद उसके वर्क को जब जांचा परखा, तो उनको लगा कि हाँ, मेंडल का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जेनेटिक्स, इसलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब या टाइटल दिया गया. किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को. तो फिर क्या वजह थी कि उसका वर्क जब उसने काम किया था, उसके जीते जी जो है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? अगर उसने पाइसम सेटाइवम पे वर्क किया था एंड इट वाज डीलिंग विद द जेनेटिक्स, तो क्या वजह थी कि वो वर्क जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ? तो रीजंस फॉर not getting Mendel's work recognized are as follows. पहली वजह जो थी, अनपब्लिश्ड वर्क था. Children, let me tell you here that when you will grow up, inshallah, you will go in higher and higher classes, and if you do research for something, that research needs to be acknowledged, and especially the acknowledgement on the global level is, or we can say at the international level, is necessary to be that work accepted by everyone at international level. तो उसका वर्क जो है वो अनपब्लिश्ड रहा, यानी कि उनकी पब्लिकेशंस नहीं हुई, या हम ये कह सकते हैं कि अगर वो पब्लिकेशंस हुई थी तो वो लोकल जर्नल्स में हुई थी, इंटरनेशनल जर्नल्स में नहीं हुई थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस काम को ना तो समझा, ना जाना और ना सराहा. तो ये एक वजह थी कि उसका वर्क उसके जीते जी जो है वो रिकॉग्निशन उसको नहीं मिली उसके वर्क को. दूसरा जो पॉइंट था उसके काम को कि मतलब वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट ही वॉज अ मैथमेटिशियन. And being the mathematician, biologists didn't accept it. His work and theories that can explain something related to biology. So, because of being the mathematician, it was not accepted by the biologist कि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि एक मैथमेटिशियन जो है वो बायोलॉजी का कोई वर्क या कोई थ्योरी हमको इंट्रोड्यूस करे. तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से उसका वर्क जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड था. तीसरा जो है, दैट टाइम वाज डार्विन्स एरा. तो लोग जो हैं वो बहुत फैसिनेटेड थे
इसकी वजह से कि डार्विन की जो थ्योरी थी उस टाइम पे बहुत चर्चा थी डार्विन की, और वो टाइम जो है इट वाज known as Darwin's era, and people, the scientists, they were more inclined towards the work of Darwin, so the Mendel's work remained unrecognized and unaccepted that time. और next main वजह जो थी, that was Mendel used the term factors in his work. And because the microscopic work that time was very elementary, and these discrete units that Mendel called as factors contrasting characters लिए कोई भी ambiguity नहीं थी, यानी कि कोई confusion नहीं था. For example, मैं ये बता रही हूँ कि ये जो है ये भी tall है, ये भी tall है, थोड़ा सा फर्क है, तो इसमें जो है ambiguity हम मानेंगे, इनके साइज में हम ambiguity मानेंगे. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लूँ, this is सिंपली ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट है, और ये जो है ये टॉल है. अगर मैं इसका ऐसे साइज लूं तो ये डॉर्फ है, ये शॉर्ट है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. लेकिन अगर मैं इन दोनों को देखूं तो कंफ्यूजन है, थोड़ा सा फर्क है, यानी कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस. तो ये कैरेक्टर्स जो हैं कंट्रास्टिंग थे, इतने कंट्रास्टिंग थे कि वो बहुत ही ज्यादा क्लियर थे, उनमें कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं थी, कंफ्यूजन नहीं था. इसलिए ये जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे, देयर वर 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो इस वजह से जो मेंडल का वर्क है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बिकॉज हिज कंट्रास्टिंग पेयर्स विच ही स्टडीड फॉर इन द प्लांट ऑफ pea, these were very clear. There was no confusion while studying the characters of this plant. Then second was the size of the sample he took was large sample size. देखिए, अगर हम कहते हैं कि मैंने स्टडी की जिसमें मैंने 100 लोगों को स्टडी किया और मैंने देखा उनके कलर जो आईज के थे वो ब्लैक है, तो वहां पर ये इंटरफेयर करना, ये रिजल्ट देना कि कलर ऑफ आईज इज यूजुअली ब्लैक या कलर ऑफ आईज इज ब्लैक, तो वो गलत है. क्योंकि इसके लिए जो सैंपल साइज मैंने लिया है, मैंने सिर्फ 100 लोगों की स्टडी की है, लेकिन एटलीस्ट कलर ऑफ आई डिटर्मिनेशन के लिए मेरे को 1000 से लेकर मिलियंस ऑफ पीपल की स्टडी करनी है, ये इंटरप्रेट करने के लिए, ये क्लियर रिजल्ट देने के लिए कि हाँ मैक्सिमम जो है कलर ऑफ आई जो है ब्लैक है, कहीं पर ब्लूइश या और ग्रीन कलर भी, सी ग्रीन कलर के आईज जो हैं पाए जाते हैं. दैट मीन्स सैंपल साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि जो भी हम इंटरप्रिटेशन देते हैं, जो भी हम रिजल्ट्स देते हैं, वो क्लियर होने चाहिए. वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो रिजल्ट है इट्स फॉर अ शॉर्ट सैंपल, तो वो कभी जो है सेरेंडिपिटी होती है, यानी कि बाय चांस वो रिजल्ट्स आते हैं अगर सैंपल साइज छोटा होता है. लेकिन जितना हमारा सैंपल साइज बड़ा होगा, लार्ज द सैंपल साइज, the results are more precise and more accurate. तो उनका सैंपल साइज जो उन्होंने पी प्लांट के लिए लिया था वो इतना बड़ा था कि उन्होंने जो रिजल्ट्स इंटरप्रेट किए वो एक्सेप्टेबल रहे. लेटर ऑन जब हमने भी या बाकी साइंटिस्ट ने जब स्टडीज की तो वो बिल्कुल उसके साथ मैच किए. तो नेक्स्ट रीजन जो उनके सक्सेस का था, दैट वाज कि उन्होंने सीक्वेंशियल डेटा एनालिसिस किया. व्हाट डज इट मीन सीक्वेंशियल डेटा एनालिसिस? कि लाइक अभी मैं सिंपल एग्जांपल बेटा आपको ऐसा बताऊंगी कि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया. अब मैं अगर हम सीक्वेंशियली चूजिंग द पी प्लांट, रीजंस फॉर
choosing pea plant, एक तो वजह ये थी कि जो पी प्लांट का लाइफ साइकिल है वो बहुत ही शॉर्ट है. इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल, से अबाउट 3 to 4 weeks. तो जितना लाइफ साइकिल शॉर्ट होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का या किसी स्पीशीज का, उतनी ज्यादा जो है स्टडीज उसके बारे में हम कर सकते हैं. अगर कोई प्लांट सालों साल लगाएगा पहले वेजिटेटिव फेज में जाने के लिए, उसके बाद उसका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा जहाँ पे फ्लावरिंग वगैरह होगी, तो इट विल टेक अस मोर एंड मोर years and less studies can be framed or less observations can be framed based upon that plant or that individual or species which has larger life cycle. इसलिए मेंडल ने जो उसका रीजन ये था कि उन्होंने पी को इसलिए चूज किया था कि इसका लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही शॉर्ट है. दूसरा रीजन जो है, जो पी है ये सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों ही इसमें पाए जाते हैं. यानी कि it fertilizes by self fertilization process as well as cross fertilization process. तो उस वजह से भी जो है मेंडल ने प्रेफर किया था पी प्लांट को कि ये इसको अपनी स्टडीज में जो है कि अगर मतलब हमें वो हम आगे मैं आपको जस्ट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा इट विल बी ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड इन द जेनेटिक्स. उसके बाद जो है हम फिर बेसिक्स मतलब जो एक्चुअल चैप्टर है वो हमें पढ़नी है. ये तो मैं आज आपको जस्ट स्टार्टिंग बता रही हूँ कि जेनेटिक्स शुरू कैसे हुई. उसके बाद हम देखेंगे कि जेनेटिक्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होती है. उसके बाद जो है बेटा हम ये देखेंगे कि हमें जेनेटिक्स में एक्चुअली पढ़ना क्या है. तो जेनेटिक्स में आप जब थर्ड चैप्टर मतलब थर्ड क्लास हम स्टार्ट करेंगे उसमें आप देखेंगे आई विल बी यूजिंग द टर्मिनोलॉजी लाइक प्योर, आई विल बी यूजिंग द टर्मिनोलॉजी लाइक क्रॉस एंड ऑल. तो वो प्योर लाइन्स हमें किससे मिलती है जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन से जो है हमें पता चलता है कि कैसे जो है जो क्रोमोसोम्स यानी कि जीन्स जो क्रोमोसोम्स में होते हैं उनकी हेल्प से जो है ट्रेट्स कैसे पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या चेंजेस या म्यूटेशंस की वजह से कौन कौन सी चेंजेस यानी कि वेरिएशन कैसे आती है, वो सब चीज़ें हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन की हेल्प से ही देखते हैं. यानी कि सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है जब हमें डीपली स्टडी जेनेटिक्स की करनी हो या वास्ट स्टडी अगर हमें जेनेटिक्स की करनी हो. अगर कोई प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं दिखाता, सिर्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखाता है, तो हमें प्योर लाइंस नहीं मिल सकती हैं. सिमिलरली अगर कोई प्लांट जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं दिखाता, सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन की मदद से जो है वो रिप्रोड्यूस होता है, तो उसमें भी हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं. ये दो रीजंस, एक तो लाइफ साइकिल शॉर्ट था, इसमें सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती थी. तीसरा जो है सीड्स जो हैं डू नॉट शो डॉर्मेंसी. कभी कभार क्या होता है जब हम सीड्स को बोते हैं, सो करते हैं, इट फेल्स टू गेट जर्मिनेटेड, जर्मिनेशन होती ही नहीं है. उस टाइम पे हमें जो है डॉर्मेंसी को ब्रेक करना होता है. तो ये भी वजह थी कि सीड्स जो पी प्लांट के थे वो डॉर्मेंसी नहीं शो करते थे, जिसकी वजह से जो है मेंडल का काम जो है उन्होंने अपने काम के लिए जो है पी प्लांट को चूज किया था. और भी कुछ रीजंस है जैसे कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मैंने बताए. It shows, this pea plant shows 7 contrasting characters. उसमें जो है हाइट, उसमें एक तो डोमिनेंट था और एक रिसेसिव. डोमिनेंट जैसे टॉल
तो हम कैपिटल टी से हम इसको दिखाते हैं, शॉर्ट है तो हम स्मॉल टी से दिखाते हैं। कलर ऑफ फ्लावर, उसमें पर्पल और स्मॉल पी जो है वो वाइट। ऐसे ही पोजीशन ऑफ फ्लावर, अगर एक्सिलरी है तो डोमिनेंट है, अगर टर्मिनल है तो स्मॉल ए से दिखाएंगे तो ये रिसेसिव है। ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये सब हम पढ़ेंगे। ऐसे ही शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, देन शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से जो है मेंडल का काम जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और लास्ट जो रीजन है इसका कि नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड पर जनरेशन और पर प्लांट was large। तो उससे क्या होता था, हमें लार्ज सैंपल्स मिलते थे जिनकी हम फर्दर स्टडीज कर सकते थे। तो इसके साथ आई होप दैट यू एंजॉय टुडेज क्लास एंड नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ द सेम चैप्टर विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू।